अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग आई वांट टू टेल यू दैट इंग्लिश इज नॉट हार्ड एट ऑल, एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी सिंगल थिंग येट from anywhere, then don't worry, because here you will understand each and everything. So let's start by understanding present indefinite tense. First of all, kindly subscribe our channel for English grammar and composition. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कंपोजिशन के लिए। Present indefinite tense. The sentence which expresses permanent behavior, permanent habit, permanent state and universal fact of the subject will be used as present indefinite tense. The sentence which expresses permanent character, permanent behavior, permanent habit, permanent state and universal fact of the subject will be used as present indefinite tense. ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल का मुस्तकिल किरदार, मुस्तकिल रवैया, मुस्तकिल आदत, मुस्तकिल हालत या आलमी सच्चाई को बयान करे तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, denotes a stative or habitual or eternally true action. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जो कि किसी हालत, किसी आदत या किसी सच्चाई को बयान करता है। उर्दू में पहचान इस तरह के जुमलों के आखिर में ज़्यादातर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। मसलन हम स्कूल जाते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। आपने देखा किस तरह ते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं वगैरह आता है। Formation in English. First form of verb, which is also known as present form, is used in this sentence. Subject plus first form of verb plus object. For example, we go to school, they play cricket. If the subject is third person singular, I mean to say he, she, it, or a single name of anything, S or ES will be used with the first form of verb. For example, वो स्कूल जाता है, असलम क्रिकेट खेलता है। He goes to school, असलम plays cricket. अगर जुमले में फाइल अकेला है और तीसरा शख्स है, मतलब he, she, it या कोई सिंगल नेम है, तो वर्ब के साथ S या ES का इस्तेमाल होगा। Where will S और ES be used? S या ES का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, मतलब S किसके साथ आएगा और ES किसके साथ आएगा। According to the table, the verbs ends with the words S, Z, SH, CH, X and O. ES will be used, and if the verb is a constant plus Y, then IES will be added, and all of other verbs will be used with S. अगर वर्ब का आखिरी अल्फ़ाबेट S, Z, SH, CH, X या O होगा तो हम उसके साथ ES का इजाफा करेंगे। अगर Y होगा तो उसको IES में तब्दील करेंगे। बाकी तमाम वर्ब के साथ S का इजाफा होगा। In this table, I give some examples about the use of S or ES. The word work ends with the alphabet K, so we use S, works. The word study ends with the alphabet Y, so we use studies, IES. The word go ends with the alphabet O, so we use ES, goes. Next, eat ends with T, so we use S. Cry ends with Y, so we use IES. Wash ends with SH, so we use ES, washes. Next, play with S, plays. Try with IES, tries. Watch with ES, watches. The simple present is a verb tense with two main uses. First, we use the simple present tense when an action happens right now,
and when it happens regularly or unceasingly. मतलब एक तो जब एक्शन उसी वक्त होता है और एक जो एक्शन मुसलसल होता रहता है बगैर किसी रुकावट के. Points, types of sentences. According to the structure and action, we have 5 types of sentences. Simple, बयानिया, negative, मनफी, interrogative, सवालिया, interrogative negative, सवालिया मनफी, WH question sentences. मतलब इसकी 5 टाइप्स हैं, बयानिया, मनफी, सवालिया, सवालिया मनफी और WH फैमिली वर्ड्स वाले questions. Simple, affirmative. Simple or affirmative are those sentences in which we don't deny or ask question. Means they are totally simple. For example, I eat eggs. In this sentence, I am not denying or asking question. यानी ये जुमले सादा जुमले होते हैं जिनमें ना ही किसी चीज़ का इनकार किया जाता है और ना ही कोई सवाल किया जाता है. जैसा कि मैं अंडे खाता हूँ, मैं अंडे खाता हूँ. अब इसमें ना ही कोई इनकार हो रहा है और ना ही कोई सवाल किया जा रहा है. ये सादा जुमले होते हैं, बयानिया. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश. वो इंग्लिश बोलता है. दे कम लेट, वो देर से आते हैं. शी कम्प्लीट्स हर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल करती है. ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है. दे बाय लैपटॉप्स, वो लैपटॉप खरीदते हैं. ही ईट्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाता है. आपने देखा किस तरह हम थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज एस और ईएस व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. एज वी सी, ही ईट्स आइसक्रीम. नेगेटिव सेंटेंस. वी यूज नेगेटिव सेंटेंस व्हेन वी वांट टू डिनाई और व्हेन वी आर नॉट एग्रीइंग विद समवन. वी यूज 2 additional words which are not and helping verbs do does. नेगेटिव सेंटेंस में हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं या हम किसी बात से इत्तफाक नहीं करते और उसमें हम 2 अल्फाजों का इजाफा करते हैं, नॉट का और हेल्पिंग वर्ब डू और डज का. इसका स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. डज विल बी यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. मीन्स he, she, it और सिंगल नेम. Do will be used with all other subjects. यानी does का इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, he, she, it या कोई सिंगल नेम होगा. और do का इस्तेमाल बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ होगा. For example, he does not speak English. वो इंग्लिश नहीं बोलता. He does not write a letter. वो खत नहीं लिखता. They do not reject us. वो हमें रद्द नहीं करते. He does not tell a lie. वो झूठ नहीं बोलता. अब आप देखें किस तरह हमने he के साथ does का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमने he के साथ does का इस्तेमाल करना है तो फिर हमने speak के साथ s या es का इजाफा नहीं करना या write के साथ s या es का इजाफा नहीं करना. Similarly, they do not win the match. वो मैच नहीं जीतते. He does not smoke. वो सिगरेट नहीं पीता. They do not buy milk. वो दूध नहीं खरीदते. Present indefinite tense interrogative. We use interrogative for asking question. In order to do that, just put the helping verbs at the beginning of a sentence and the end put question mark. Interrogative sentence सवालिया जुमले जिसमें सवाल किया जाता है और इसमें helping verb शुरू में लगाया जाता है और आखिर में question mark लगाया जाता है. Structure of interrogative sentence. Do does plus subject plus verb first form plus object. Helping verb do does शुरू में आ गया, फिर subject है, फिर verb की first form आई है और फिर object और आखिर में question mark. For example, does he tell a lie? क्या वो झूठ बोलता है? Does he listen songs? क्या वो गाने सुनता है? Do they write a book? क्या वो एक किताब लिखते हैं? Does Naseem wear jeans? क्या नसीम जीन्स पहनता है? हेल्पिंग वर्ब डू और डज शुरू में आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क. डू दे ओपन दिस शॉप? क्या वो ये दुकान खोलते हैं? डू दे रिकॉर्ड वॉइस? क्या वो आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं? डज शी कुक फूड? क्या वो
खाना पकाती है। Interrogative negative sentence. In this type of sentence we use question with denying. इस तरह के जुमलों में हम सवाल करते हैं इनकार के साथ। When we talk about the structure of interrogative negative sentence, first do does plus subject plus not plus verb first form plus subject plus question mark. Do does शुरू में आएगा, फिर subject आएगा, फिर not, फिर verb की first form और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डज ही नॉट अर्न मनी, क्या वो पैसा नहीं कमाता? डू दे नॉट रिसाइट द होली कुरान, क्या वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करते? डू दे नॉट कम टू यू, क्या वो तुम्हारी तरफ नहीं आते? डज अकरम नॉट वर्क इन ऑफिस, क्या अकरम दफ्तर में काम नहीं करता? प्रेजेंट इंडेफिनिट WH questions. They are like a normal interrogative sentence, but they have two conditions. First, they start from the words what, when, why, which, where, whom, how, and who. Second, the answer cannot be yes or no. You have to give proper answer. ये अल्फाज आम सवालिया जुमलों की तरह होते हैं, लेकिन ये WH फैमिली वर्ड्स से शुरू होते हैं, जिन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, सवालिया अल्फाज भी कहते हैं, जो कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, वेयर, हुम, हाउ एंड हु हैं, और इनका आपको यस और नो में नहीं बल्कि प्रॉपर जवाब देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू दे स्टॉप अस, वो हमें क्यों रोकते हैं? हाउ डज इट किल मॉस्किटोज, ये मच्छरों को कैसे मारता है? वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है? When do they take breakfast, वो कब नाश्ता करते हैं? ये जुमले WH फैमिली वर्ड से शुरू हैं और आम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह हैं। Stative form of sentence. In this kind of sentence, there is no action verb. It is a sentence of permanent state of a thing. इस तरह के जुमलों में कोई एक्शन वर्ब नहीं होता, कोई एक्शन अमल नहीं होता, और ये एक मुस्तकिल हालत, किसी चीज की मुस्तकिल हालत के मुतल्लिक जुमला है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। दे आर गुड पर्सन, वो अच्छे अशखास हैं। आपने देखा कि ये जुमले किसी हालत या किसी स्टेट को बयान करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज एम एंड आर यूज्ड एज मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इस तरह के जुमलों में इज, एम और आर जो है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आई प्लस एम, आई के साथ एम, यू एंड प्लूरल, यू और जमा के साथ आर, सिंगुलर प्लस इज, सिंगुलर के साथ इज लगाया जाता है। एक्टिविटी फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मेक अ लिस्ट ऑफ योर डेली लाइफ वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल यू गो टू योर बेड एंड मेक देम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Do more and more practice in your daily life. एक्टिविटी ये है कि जी आप सारे दिन की जो रूटीन लाइफ है उसकी एक लिस्ट बनाएं, उसके कामों की एक लिस्ट बनाएं और उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनकी इंग्लिश बनाएं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखने के लिए शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।